हर एक प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखी है तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप विश्वास ना मिलाओ उसमें। Every promise of the Bible does not get fulfilled unless you mix faith in it. यानी जब आप रोज सुबह उठे हो आप बोल सकते हो धन्यवाद पिता, कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। Every morning when you wake up, you can say, "Thank you, Father. No evil will befall my dwelling place." आपको विश्वास मिलाना पड़ेगा उसमें। You will have to mix faith in it. ओके, हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. तैयार हैं आप? Are you ready? मैं आपको बता रहा हूँ आज बहुत अमेजिंग होने वाला है। I'm telling you, it's going to be amazing today. एक ऊंचा हालेलुया शाउट करो। Shout out a loud hallelujah today. आमेन। You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Praise God. हम लोग कंटिन्यू करेंगे Psalm 91। We will continue the teaching of Psalm 91. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah. So, आज मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए आप अपने ध्यान को भटकने मत देना। Today, no matter what happens, do not be distracted. क्योंकि आज का जो प्रकाशन आपको मिलेगा, Because the revelation you will receive today, वो जिंदगी भर आपको आजाद रखेगा। it will keep you free all your life. Amen. क्योंकि ये नॉर्मल नहीं कि मसीह लोग दुष्ट आत्माओं के सताव में जिएं। Because it is not normal that believers live under the oppression of demonic spirits. ये आपके पिता की इच्छा नहीं। This is not the will of your Father. वो चाहता है आप उस आजादी में जियो जो मसीह ने आपको दी है। He desires for you to live in the freedom that Christ has given to you. Amen. Amen. हर एक शैतानी शक्ति आपके पांव के नीचे होगी यीशु के नाम में। Every demonic power will be under your feet in the name of Jesus. मैंने कहा हर एक शैतानी शक्ति आपके पांव के नीचे होगी यीशु के नाम I में। said every demonic power will be under your feet in the name of Jesus. Amen. ये अधिकार हमारे प्रभु ने This authority our Lord हमें दी है। has given to us. उसका वचन कहता है कि देखो तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का जो अधिकार है मैं तुम्हें देता हूं। His word says, "I have given you the power to trample upon snakes and scorpions." भगाने का ही नहीं, Not just to make them run away, रौंदने का। but to completely crush them बोलो underfoot. मेरे पास सामर्थ है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, और किसी भी वस्तु से मुझे और मेरे परिवार को कुछ हानि ना होगी। Say with me, I have the power to trample upon snakes and scorpions and over all the power of the devil, and nothing shall by any means be able to harm me or my family. Amen. Amen. Hallelujah. So पिछली बार जो हमने साम सीखा वो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल था। The Psalms we learned yesterday, last time, it was so beautiful. और जितना आप मेडिटेट करोगे इस साम में उतना आपको प्यार हो जाएगा इस साम से। And the more you meditate on this psalm, the more you will love it. Amen. It's one of my favorite psalm. ये मेरे पसंदीदा भजन संहिताओं में से एक है। क्योंकि जितनी भी स्कीम, जितने भी बुरे प्लान शैतान आपके विरोध में जो बना सकता है, या कोई भी विपत्ति जो आपके विरोध में आ सकती है, वो सब कवर्ड है इसके अंदर। Because any evil scheme that the devil can make against you or any trap he can set for you, everything is covered in this one psalm. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो चलिए चलते हैं Psalm 91 verses 5
भजन 91 उसकी 5वीं You आयत can see it on your screens. अपनी स्क्रीन पर आप All देख सकते right. हैं। 4 तक हमने लास्ट संडे देखा था। Amen. यहां पे बाइबल कहती है You shall not be afraid of the terror by night. यहाँ द बाइबल सेज तू ना रात के भय से डरेगा। यहां हिंदी बाइबल में वही शब्द है भय, द हिंदी बाइबल हैज द सेम वर्ड, मगर ये शब्द केवल भय नहीं है। इट्स नॉट फियर। बट दिस इज ये डर नहीं है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द हिब्रू वर्ड पखात, ये पखात शब्द से आता है इब्रानी के, which means dread. जिसका अर्थ है थरथराते हुए भयभीत हो जाना किसी बात से। It talks about a fear that is paralyzing fear. वो एक ऐसा डर है जो किसी को लकवा ग्रसित कर दे डर के मारे। This is not just a normal fear. ये साधारण डर की बात नहीं हो रही है। In fact, if I can say it, this is the highest form of fear that a human being can experience. मैं ये कहूंगा कि ये सबसे भयानक तरीके का भय है जो एक मनुष्य अनुभव कर सकता है। It is not just fear of dark, fear of snakes, fear of height. It's not that fear. अंधेरे का डर, सांप का डर, ऊंचाई का डर नहीं है ये। It is actually a demonic fear. ये एक शैतानी भय है। Okay? And if you understand this, अगर आप इस बात को समझें कि अगर कोई मनुष्य सबसे जो ऊंचे दर्जे का आतंक अगर वो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, ये उसकी बात कर रहा है। दिस इज व्हाट द बाइबल कॉल्स टेरर ऑफ द नाइट। दिस इज व्हाट बाइबल इसको रात का आतंक कहती है, जो सबसे डरावना भय कोई अनुभव कर सकता है। Now many times what happens when we read the word, we think these words are mere a poetic language in which the writer is trying to express something. कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये एक कविता की तरह लेखक ने कविता के शब्दों को लिखा है। मुझे भी ऐसे ही लगता था। That's what I used to think. कि बाइबल कह रही है रात के भय से हम नहीं डरेंगे। That we will not be afraid of the terror of the night. जब तक मैं अफ्रीका नहीं गया। Until I went to Africa. और 2013 में मैं अफ्रीका गया और मैं एक जगह में गया जहां जिसका नाम था बाजो। I went to a place called Bajo in Africa. Okay, अगर टीम के पास पिक्चर है तो आप वो दिखा सकते हो। If the team has the picture there. So ये 2013 की है। This is 2013. और बाजो में मैं गया जो युगांडा में एक जगह है। I went to Bajo in a place called in Uganda. और वहाँ जो भाषा है स्वाहिली। And the language there Swahili. उसमें जो बाजो है उसका मतलब होता है फ्रैगमेंट्स और पीसेस, यानी टुकड़े। It means pieces या टुकड़े। और अब वहां पर एक छोटा सा गांव टाइप का बस गया है, मगर पहले वो जो जगह बाजो थी वहां वो पूरी एक वेदी होती थी शैतान के लिए, जहां पे इंसानों को सैक्रिफाइस किया जाता था। Now there is a small village there, but earlier the entire place was an altar for the devil where they would make small pieces of human beings and offer as sacrifice. And when I went to Africa, this was the first place where we had to minister. जब मैं अफ्रीका गया तो ये पहली जगह थी जहां पर हमको सेवकाई करनी थी। और 2013 में In मैं 2013, प्रभु को जानता था, I knew the Lord, मगर आत्मा में उतना स्ट्रांग नहीं था। but I was not that strong in the spirit. प्रभु को जानता था, प्रभु से प्यार करता था, I knew the Lord, I loved the Lord, आत्मा से भरा था, I was filled with the अन्य Spirit, भाषा में प्रार्थना करता I था, spoke in unknown tongues, मगर मैच्योर नहीं था। but I was not matured. सो मैं अफ्रीका गया I went to Africa, और पहली रात, सो आज मैं आपको बता रहा हूँ टेरर ऑफ द नाइट क्या होता है, the first night. Today I'm telling you what is the terror of the night. ये वो क्योंकि रात मेरा का आतंक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। because I have first hand experience with it. सो सबसे पहले रात को जिस रात हम वहाँ लैंड मतलब मैं पहुंचा वहां पे, The night I reached there, हम लोग एक घर पे रुके जो बिल्कुल जंगल के बीच में था। we stayed in a house that was in the middle of a jungle. बिल्कुल कोई लाइट नहीं थी वहां पे, There was no light there. और वहां पे जैसे मैं लेटा, और वहां पे जो कलीसिया थी वो कोई सीमेंट की नहीं थी, वो जैसे एक हट होता है जिसके ऊपर घास डाली होती है,
और लकड़ी से जो वो वैसी वो कलीसिया थी, और उनके पास कलीसिया में केवल एक वो बड़ा वो ड्रम होता है ना, बड़ा नगाड़ा टाइप का, वो वैसा था। So the church there looked like a hut where they had put grass on the top of the roof and they had a small drum और for worship. रात को करीबन 1:30-2 बजे के बीच में मुझे बड़ी तेज से वो ड्रम बजने की आवाज आने लगी। Around 2 in the middle of the night, I started to hear a loud sound of those drums being played. दुम 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 दुम। तो मुझे लगा शायद पास्टर जो हैं वो कुछ ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, अपने वर्शिपर्स के साथ कुछ प्रेयर चल रही है। I thought the pastor must be doing an all-night prayer with all his worshippers. करीबन 10 से 15 मिनट वो आवाज आती रही और बिल्कुल ऐसे थी जैसे मेरी खिड़की के बाहर कोई बजा रहा है। For 10-15 minutes, I kept on hearing that sound and as if somebody was playing it right outside my window. मैं बहुत टायर्ड था क्योंकि उसी रात हम लोग लैंड कर रहे थे। I was very tired because we had just landed there. तो मैंने कहा कल मैं पास्टर से पूछूंगा और मैं भी ज्वाइन करूंगा रात से। I said I'll ask the pastor tomorrow and I'll also join the night prayer तो tomorrow. सुबह मैं उठा, मैं उन पास्टर के पास गया, मैंने कहा पास्टर जी आप वो क्या रात को कौन सी प्रेयर मीटिंग हो रही थी? I woke up in the morning and I asked the pastor what prayer meeting was happening at night. तो कह रहे कोई प्रेयर मीटिंग नहीं हो He रही। said no prayer meeting. मैंने कहा वो ड्रम बज रहे थे। I said I heard the drums. कह रहे कोई ड्रम नहीं बज He रहे said no drums were playing. थे। तो मैं टीम के पास गया, I went to the team. मैंने कहा आपने वो ड्रम सुना? बिल्कुल बगल में, क्योंकि मेरे बिल्कुल बगल के कमरे में बाकी टीम थी। In my next room was the entire team, so I asked them, "Did you hear any drums last मैंने night?" कहा आपने ड्रम सुना जो रात को बज रहा था? I said, "Did you hear any drums last night?" कह रहे नहीं, हमने कोई ड्रम नहीं सुना। They said, "No, we did not hear any drums." मैं जानता था मेरा सपना नहीं है, I knew it was not my dream. वो रियल था। It was for real. बिल्कुल मेरी खिड़की के बाहर ड्रम बज Right रहे। outside my window, there was drums playing. सबसे पूछ लिया टीम में, किसी ने नहीं सुने। I asked everyone in the team, nobody heard it. सो फिर एक और जिन्होंने हमारी टीम में आना था, माइकल, There was another person who had to join our team. His name was जो Michael. इस शहर के बाद जिस शहर में हमें जाना था वहां पे उन्होंने हमें ज्वाइन करना था। उनका मुझे एक मैसेज आता है, डिड यू हियर द डिमोनिक ड्रम्स लास्ट नाइट? He was supposed to join us in the next city in the tour, and he messaged me and said, "क्या तुमने रात को शैतानी ड्रम्स की आवाज सुनी?" मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यहाँ किसी ने नहीं सुनी मुझे छोड़कर। I messaged and said, "Nobody here heard it except me." उन्होंने कहा वो केवल जो आत्मा में सेंसिटिव लोग हैं वही सुन सकते हैं। He said, "Only those who are sensitive in the spirit can तो hear मैंने it." उनसे पूछा, क्योंकि वो अफ्रीका में ही रहते हैं, He lives in Africa, so I asked him. मैंने उनसे पूछा ये क्या है ये ड्रम की आवाज जो रात को आती I है? asked him, "What is the sound of that drum?" तो उन्होंने बताया रात को ये एक इनविटेशन है जो सारी दुष्ट आत्माएं, जो सारी ये जो इनकी मीटिंग होती है। He said, "That's an invitation for all the demonic spirits. At night they have a meeting." कई लोग हैं वो नहीं जानते इस बात को, कई मसीह हैं बिल्कुल अनजान हैं। Many people are completely ignorant and unaware of these things. मैं भी था जब I- तक मेरे साथ वो सारी चीजें नहीं हुई। I was also ignorant until it happened to me. आमीन। मगर हम वो लोग नहीं हैं जो शैतान को बड़ा करते हैं। But we are not those people who हम exalt जानते the हैं हमारे devil, पाँव के नीचे है। because we know the devil is under our feet. आमीन। मगर हम वो लोग भी नहीं हैं, अपोस्टल पॉल कहता है वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ द वाइल्स ऑफ डेविल। Apostle Paul कहते हैं हम वो नहीं जो शैतान की युक्तियों से अनजान हो, अनविज्ञ सो हो। वी आर नॉट इग्नोरेंट टू हाउ ही ऑपरेट्स। हम अनजान नहीं है कि वो कैसे काम करता है। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। I'll tell you what happened after that. ये बड़ा मजेदार है। This is very interesting. रात हम लोग सुबह जाते, प्रचार करते, प्रभु के बारे में लोगों को बताते, बीमारों के लिए प्रार्थना करते। Every morning we would go preach the gospel, pray for the sick, और heal रात the को sick. जैसे ही मैं अपने कमरे में आता, At night, the moment I enter my room, ऐसे लगता कि इतनी मोटी एक काली चादर मेरे कमरे के ऊपर मेरे ऊपर आ जाती। I would feel like a thick, dark blanket would come upon me and the entire room. मैंने ऐसा आज तक महसूस नहीं किया था। I had never felt such a thing before. और वो ऐसा था जैसे मैं पैरालाइज हो जाता था उस फियर से। And it was as if I would get paralyzed by that fear. मैं उठकर अपने बेड से भी बाहर नहीं जाता था। I could not even come out of my own bed. मैंने आपको बताया मैं आत्मा में इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं मैच्योर नहीं था। I told you I was not strong in my spirit at the time. और मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये क्या है? And I said, "Lord, what is this?" मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आई, टेरर ऑफ द नाइट। I heard the Holy Spirit say, "रात का आतंक."
पहली बार पवित्र आत्मा से मुझे ये समझ में आया, जब वचन में लिखा है टेरर ऑफ द नाइट क्या होता है। मैं, प्रभु ने मुझे डर से पहले ही डिलीवर कर दिया था जब मैं मसीह में आया, मगर ऐसा आतंक मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। That's the first time I was encountering such a terror. I was already delivered of fear when I came to the Lord, but I had never experienced such a terror before. मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करी, I tried praying in unknown tongues. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. पूरी रात मैं बैठा रहा अपने बेड में। All night I kept sitting in the अगले दिन Next जैसे ही सुबह होती वो लिफ्ट अप कर जाता। As soon as it was morning, it would lift up. हम बाहर जाते, प्रचार करते, दूसरी रात फिर से वो मेरे कमरे में के ऊपर वो चादर आ गई। We would go out and preach. Next night, again that blanket came up in my room. तीसरी, Third. जब आज तीसरा दिन है, जब मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अगर आज रात भी ये होगा तो मैं कल सुबह टिकट लेके वापस इंडिया चला जाऊंगा, मैं ऐसे सेवा नहीं करना चाहता। The third day, when it was morning, I told the Lord, if this happens tonight, I will book my ticket and I'll go back to India. I don't want to serve like this. और वो रात थी जब पहली बार मेरा साक्षात्कार एक स्वर्गदूत के साथ हुआ। And that was the first night when I encountered an angel of the Lord, an angel. आमीन। केवल दुष्ट आत्माएं नहीं है हर जगह, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं। It's not just demonic spirits everywhere. The angels of God are also there. आमीन। और ज्यादा हमारी साइड है। And more are on our side. Amen. God Amen. has not left us without help. परमेश्वर ने हमें बिना मदद के नहीं छोड़ दिया. So तीसरी रात The third night, मेरे साथ जो टीम मेंबर माइकल थे, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा थोड़ी देर हम आराधना करते हैं। the team member Michael called me in his room and he said, well, let's worship for some time. और मैं चेयर में बैठा, उन्होंने एक वर्शिप सॉन्ग्स लगा रखे थे। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, I sat on the chair and he put worship songs. The moment I closed my eyes, मुझे अपने आगे एक करीबन 8 से 9 फीट लंबा एक स्वर्गदूत खड़ा था। there was an angel 8 or 9 feet tall right in front of me. और वो मुझसे बात करने लगा। And he began talking to me. और वो कहने लगा, जब एक सैनिक अगर लड़ाई के मैदान में आकर डर जाए तो वो किसी काम का नहीं है। He says if a soldier gets terrorized or afraid in the middle of a battle, he is good for nothing. और फिर उसने मुझसे कहा, मैं तेरा स्वर्गदूत नहीं हूँ। Then he told me, I am not your angel. उसने कहा, मैं, पिता ने मुझे तेरे साथ इस ट्रिप में रहने के लिए भेजा है। He said the Father has sent me to be with you on this trip. और वो मेरे अंदर, और जैसे वो बोलता, वो केवल शब्द नहीं थे, लिटरली एक करेज, एक टैंजिबल एक करेज मेरे इस आत्मा में मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी आत्मा में करेज आ रहा है। As he was speaking to me, his words were like courage was being deposited into my spirit. और भी उसने बातें बताई आगे परमेश्वर क्या करेगा, जो आप देख रहे हो आप। मगर जैसे जैसे वो बोलता गया, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे एक माइटी, एक परमेश्वर का करेज मेरे अंदर टैंजिबल रीति से इम्पार्ट हुआ। He told me many other things to happen in the future which you are seeing now, but as he was speaking, I experienced a mighty deposit of courage. मैंने साहस अनुभव किया अपने अंदर बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे जो ज़्यादा ज्ञानी हैं कि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, फिर स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है। I know some of you will think, oh, we already have the Holy Spirit. Why do we need angels? सो बाइबल पढ़ो। Read your Bible. जब यीशु मसीह ने उपवास किया, उसके बाद बाइबल सेज एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड टू हिम एंड स्ट्रेंथेंड हिम। After एंजल्स स्ट्रेंथेंड द लॉर्ड जीसस। After Jesus had fasted, the angels के स्वर्गदूतों ने आकर के उसकी सेवा टहल की, उसकी सेवकाई की, उसको बल दिया। स्वर्गदूतों ने Angels can come and strengthen us when we feel weak in the journey. स्वर्गदूत आ करके हमें बल दे सकते हैं जब अपनी यात्रा में हम कमजोर महसूस करते हैं तो। Amen. Amen. And then he said something which was very profound. तब उसने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली था। He told me his name. उसने मुझे अपना नाम बताया। Angels have a name. I don't share many experience because people can become weird. स्वर्गदूतों के नाम होते हैं। मैं बहुत से अनुभव इसलिए नहीं बताता कि फिर लोग अजीब हो जाते हैं। But he said, my name is Shelter. उसने कहा मेरा नाम शेल्टर है। Isn't that amazing? क्या अद्भुत नहीं है? That the antidote to the terror of the night was a shelter that God sent. कि रात के आतंक के लिए समाधान वो शेल्टर था जो परमेश्वर ने भेजा। Amen. Amen. And that's what we learned last
संडे हमने लास्ट संडे सीखा हाउ ही इज अ शेल्टर, अ रेफ्यूज इन द टाइम्स ऑफ सडन कैलेमिटी। और पिछले रविवार हमने यही सीखा कि वो हमारा छिपने का स्थान है, समस्या के समय में, परेशानियों के समय में हमारा छिपने का, शरण का स्थान है। आमीन। अब इस बात से कोई आपको बहुत आत्मा में बड़े होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि रात जो समय है यह हाई डिमोनिक एक्टिविटी का समय होता है। You don't have to be very mature to find out रात का समय, the night time is the high demonic activity time. आपको पता है सारे जो ये तांत्रिक हैं, ये जो सब करते हैं, ये रात को कब्रिस्तान में जाते हैं जो भी उन्हें करना है। All the witch doctors, those who do black magic, they go to the graveyards at night. बिकॉज रात का एक सिग्निफिकेंस है बाइबल में, बिकॉज डार्कनेस का एक सिग्निफिकेंस है। There is a significance to darkness to the night in the Bible. आमीन। और आज मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप इस बात को समझो कि कभी आज के बाद दुष्ट आत्माओं से ना डरो और एक जयवंत जीवन जियो। So I want you to understand so that you will never be afraid of demonic spirits ever again and live a victorious life. Amen. Terror by night. रात का You भय। shall not be afraid. तुम भयभीत नहीं होगे रात के आतंक से। और उस रात के बाद मैं 2 महीने अफ्रीका में रहा एकदम फ्री, 1% भी टेरर ने मुझे परेशान नहीं किया। After that experience, I stayed in Africa for 2 months. Not even one night was the terror of the night able to terrorize me. Amen. और इससे भी बहुत खतरनाक चीजें हुई जो आपको बताऊंगा। And there were many more dangerous things that happened. I'll share with you. Amen. मगर प्रभु ने मेरी स्पिरिट में उस करेज को इम्पार्ट कर दिया था। But the Lord imparted that courage in my spirit. Amen. Amen. Hallelujah. And I felt the presence of that angel during that entire trip. मैंने उस पूरे 2 महीने की ट्रिप में उस स्वर्गदूत को अपने बगल में एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। आप जानते हैं एक्ट्स में होली स्पिरिट अलग अलग तरीके से बताती है। होली स्पिरिट टोल्ड फिलिप टू गो, और एक जगह लिखा है द एंजल टोल्ड फिलिप। सो अंतर है जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है और जब एक स्वर्गदूत आपसे कहता है, उसमें अंतर है। So in the book of Acts, the Holy Spirit told people differently. फिलिपस को एक जगह पवित्र आत्मा ने बोला, एक जगह फिलिपस को स्वर्गदूत ने बोला. There's a difference when that happens. कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों है, जब पवित्र आत्मा है तो स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है? क्योंकि वो किंगडम को नहीं समझते कि किंगडम में प्रोटोकॉल्स हैं, परमेश्वर ने अलग अलग स्वर्गदूतों को अलग अलग काम दिए हैं. Some people say when there is Holy Spirit, why do we need angels? It's because they don't understand the kingdom. God has given different assignments to different angels. Amen. You shall not be afraid of the terror by night. तू रात के आतंक से नहीं डरेगा, भयभीत ना होगा. Come on, declare this. I shall not be afraid of the terror by night. मैं रात के आतंक से भयभीत नहीं होऊंगा. Amen. Amen. You know, night is the time of plunders, robberies, murders, you know, all the evil things that people plan. रात का वो समय है जब लोग चोरी, हत्या करते हैं, डाका डालते हैं, सारी बुरी चीजें वो रात को करते हैं अंधेरे में. और कई लोग डरते हैं क्योंकि रात को वो सो रहे हैं, तो उनको पता है मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता. And many people are afraid because they know they are sleeping, they cannot save themselves or their families. पुराने समय में जब लड़ाई होती थी, तो जब जो शत्रु है किसी का, जब वो रात को सो रहा होता था, तब अटैक करते थे कि सोते सोते उनको मार देंगे. In the olden times when there was a war happening, the enemy army would come at night so that when the enemy is sleeping they would kill them. Amen. मगर आप मस्त सो सकते हो. But you can sleep peacefully. Amen. Amen. जानते हो क्यों? You know why? क्योंकि आपका जो रक्षक है वो कभी सोता नहीं है. Because the one who protects you does not sleep, never sleeps nor slumbers. Amen. Psalm 121 verses 4 to 5 यहाँ पे लिखा है, Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Hallelujah. वो जो इज़राइल की रक्षा करता है ना तो ऊँघता है और ना ही सोता है. And when it says Israel, it does not mean physical country Israel, it means
the Israel of God, which is of Jews and Gentile believers. और जब वो इज़राइल कहता है तो वो इज़राइल देश की बात नहीं हो रही है, वो उन विश्वासियों की बात हो रही है, चाहे वो यहूदियों चाहे गैर यहूदियों। Amen. जो इज़राइल का रक्षक है, ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, क्योंकि वो नहीं सोता, आप सो सकते हो आराम से उस पर ये भरोसा करते हुए कि मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है। Because he does not sleep, you can sleep peacefully, knowing that my God and my Lord protects me when I sleep. Amen. The Lord is your keeper. प्रभु आपका रक्षक है, आपका Come on, declare रखवाला this. Say, the Lord is my keeper. है। घोषणा करो, प्रभु मेरा रखवाला है। Hallelujah. The Lord is your keeper. प्रभु आपका रखवाला है। Amen. Terror of night. रात का आतंक। So रात का कोई भय नहीं. There'll be no fear, no terror of the night. Nor of the arrow that flies by the day. ना ही उस तीर से जो दिन दिहाड़ी में उजाड़ता है। That उड़ता means है। यहाँ पे दो तरह की बात हो रही है, जो चीज छुप के आती है रात के समय और जो नाश करती है खुले में दिन के समय में, परमेश्वर हमें दोनों से बचा के रखता है। It's talking about two things, the things that come hidden secretly at the night or the things that destroy openly in the day. God protects us from both the things. See, terror by night, it talks about darkness. If you see Isaiah 54:17, it says, no weapon formed against you shall prosper. Arrow is a weapon. रात का आतंक, और उसके बाद लिखे जो तीर जो दिन में उड़ता है, यशाया 54:17 कहता है कोई हथियार तेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। वो तीर एक हथियार है जो आपके विरुद्ध उड़ता है, वो No सफल नहीं weapon होगा। formed against you. That means weapons will be formed against us. तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा, मतलब हथियार तो बनाए जाएंगे हमारे खिलाफ, Amen. लेकिन सफल हमारे नहीं खिलाफ हथियार बनाए जाएंगे, Weapon- मगर हमारा परमेश्वर कहता है एक भी सफल नहीं होगा। Amen. Weapons will be formed against us, but our God declares not even one will succeed. Amen. Hallelujah. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Who will condemn? You shall condemn. और हर एक जीव जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होती है उसको तुम खंडित करोगे। Amen. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Because God has given you authority. This is the heritage of the servants of the Lord. परमेश्वर के जो संत हैं उनकी यही विरासत है। And their righteousness is from me, says the Lord. और उनकी Hallelujah. धार्मिकता मुझसे है, परमेश्वर कहता है। क्यों वो तीर छेद नहीं पाएंगे? क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता की झीलम को पहना है, और कोई तीर इतना पहना नहीं कि उसकी धार्मिकता को छेद सके। Why no arrows will be able to penetrate you? Because you have put on the breastplate of His righteousness, and no arrow is sharp enough to pierce through His righteousness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. ना तू रात के आतंक से भयभीत होगा, ना दिन में उड़ने वाले तीरों से। Okay, let's see Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. इफिसियों 6:12 में लिखा, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। Amen. जब मैं मसीह में आया, When I came to the Lord, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, the background I come वहाँ from, पे मरे हुए लोगों की आराधना करते हैं, they worship वहाँ the पे dead people, वो सारी चीजें होती हैं। they do many things. तो जब मैं मसीह में आ गया, After I came to the Lord, हर रोज रात को मुझे बुरे सपने आते थे। every night I would have nightmares. मैं प्रभु में आ गया, मेरा उद्धार हो गया, I was in the Lord, I was saved, मगर हर रोज रात को बुरे सपने आना, but every night I would have evil dreams. मेरे डेमोनिक एनकाउंटर्स होने लगे जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया। I would have demonic encounters when I was new to the Lord. आप जानते हैं शैतान कब तक आपके ऊपर अपना दम दिखाएगा? जब तक आप अनजान हो उस अधिकार से जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। You know, until when will the devil try and show his power against you? Until you are ignorant of the authority that God has given to you. मैं एक बार
नेशनल ज्योग्राफिक में एक बार देख रहा था बहुत पहले, वो एक मेंढक होता है I was watching National Geographic, there was a frog. और उस मेंढक को जब अटैक करने के लिए कोई चीज आती है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को फुला के इतना बड़ा ऐसे दो टांगों में खड़ा हो जाता है ऐसे। And when something comes against that frog to attack him, he lifts up his legs and he fills air and tries to show himself big. और जो दूसरी पार्टी है वो डर के भाग जाती है। And the one trying to hunt him gets afraid and goes away. असली में वो छोटा सा है, In reality, that frog is very दिखाता है small. बड़ा। Shows himself to be big. शैतान भी ऐसी है। That's how the devil is. जब तक आप अनजान हो Until कि you are- आपका खुदा कौन है और वो अधिकार कितना महान है जो उसने आपको दिया है, आप भी डरते रहोगे। Until you are ignorant of who your God is and what great authority He has given to you, you will also be afraid. Amen. So हर रोज रात को मुझे बुरे सपने आते थे Every night I would have nightmares. एंड मुझे आज भी याद है, आई सॉ डार्क कमरा है मेरा रात को, हाँ बिल्कुल डार्क कमरे में मुझे एक जैसे ही मेरे मुंह से निकला यीशु के नाम में, वो it ran away. और फिर मुझे बार बार ये ड्रीम आते कि मेरे पास एक गन है मगर उसके अंदर गोलियां नहीं है। And again I would see these dreams that I have a gun but there are no bullets in that gun. और मैं देखता कि चारों तरफ दुष्ट आत्माएं हैं And I would see demonic spirits और मेरे everywhere. पास गन है, I have a gun, मैं ट्रिगर दबा रहा हूं मगर कुछ नहीं हो रहा। pressing the trigger, nothing is happening. तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये बार बार मुझे सपना क्यों आता है? I said, Lord, why do I see this dream again and again? और प्रभु ने आज जितने मसीह हैं, इतने साल हो गए, आज भी दुष्ट आत्मा ने उनकी फुटबॉल बना रखी है, आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। And there are so many believers, you are a believer for so long, but still the devil plays football with you. I'm talking to you today. मैं आज आपको रीजन बताता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था जो पिता ने मुझे बताया। I'm telling you the reason why this was happening to me, what the Father told तो me. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों मुझे ये सपने आते हैं बार बार? I said, Lord, why do I see these dreams again and again? और उसने कहा, My son, you don't have my word hidden in your heart. उसने कहा, मेरे बेटे तेरे दिल में मेरा वचन छिपा हुआ नहीं है। Because if you read Ephesians 6, the entire armor is defensive. There is only one offensive weapon that a believer has, and that is the sword of the Spirit, that is the word of the living God. क्योंकि जब आप इफिसियों 6 पढ़ते हो तो सारा का सारा जो कवच है वो सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए है। हमला करने के लिए एक ही चीज दी गई है, वो है आत्मा की तलवार, जो कि उसका वचन है, परमेश्वर का वचन। Amen. So अब मुझे मेरे समझ में आ गया, Now I understood. मुझे पता चल गया गोलियां चाहिए, गन तो है, I understood. I have a gun. I need the गोलियां bullets. चाहिए। I need the bullets. तो मैंने गोलियां लेनी शुरू करी प्रभु से। So I started to take bullets from कैसे? God. How? उसके वचन पर मनन कर करके उसके वचन की घोषणा में करने लगा सुबह शाम अपने कमरे में। By meditating on His word day and night in my room. क्या हुआ? What happened? मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you. शायद 14 से शायद 15, 16, 17 जितने साल हो गए, एक बुरा सपना नहीं आया, एक बुरा सपना नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन को, जो आत्मा की दोधारी तलवार है, अपने दिल में बसा लिया। It's been 14, 15, 16 years. I have not had one nightmare. Why? Because I hid the sword of His Spirit, His word in my heart. Amen. इसीलिए आत्मिक जहां में घोषणा करना बहुत जरूरी है। This is why it is so important to declare in the spirit world. David says, I will say of the Lord. दाऊद कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। In Hebrews, it is written, I will say to the Lord. इब्रानी में लिखा है, मैं प्रभु से कहूंगा। Okay? ठीक है? यहां तक। So darkness में डरने की जरूरत नहीं है। You don't have to be afraid in the darkness. हाँ, darkness हो, कई मसीह हैं जो अंधकार से डरते हैं, Whether it's dark, there are many believers who are afraid of the dark. क्योंकि उन्हें नहीं, जो जेरिको की कहानी पढ़ी है आपने? Have you read the story of Jericho? हाँ? ये जेरिको वालों से डर रहे थे और असली में जेरिको वाले इनसे डर रहे थे। The Israelites were afraid of the people of Jericho, but in reality the people of Jericho were afraid of the Israelites. मसीह लोग अंधकार से डर रहे हैं, जबकि अंधकार की ताकतें मसीहों से डरती हैं।
The believers are afraid of the dark, but whereas in reality the darkness is afraid of believers. Amen. इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको इग्नोरेंट रखना. So the greatest weapon of the devil is to keep you ignorant. इनको बढ़ने मत देना वचन में. Don't let them grow in the word. इसीलिए मैं आपको बता, कई लोग, दुष्ट आत्मा केवल अटैक ये नहीं है. Demonic attack is not आपको just बताना. when people manifest. सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा का अटैक पता है क्या है? The biggest आपको demonic वचन attack. नहीं सुने. कई मसीह लोग आएंगे जैसे ही वचन शुरू, The greatest demonic attack is that the devil will not let you hear the word. The moment Yes. the word starts, many believers मैं आज they आपको sleep. सच बता रहा हूं. I'm telling you the truth. अगर आपको वचन सुनने नहीं देता शैतान, आप कभी भी पूरी डिलीवरेंस नहीं पा सकते अपनी लाइफ. If the devil does not let you hear the word of God, you will never have free, complete deliverance in your life. जो वचन में सोते हैं वो Those- रात को जगते हैं Those who sleep डर during, डर के. हाय 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 हाय. those who sleep during the word are awake at night afraid. मगर जो वचन जब सुनाया जाता है तब जागृत होकर सुनते हैं तो रात को बच्चे की तरह सोते हैं. But those who hear the word intently, when it is taught, they sleep like a baby at night. Amen. So you have to make sure ध्यान दो इस बात पे. कि मैं अपने को मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा वचन को. I will not let myself be distracted during the क्योंकि word. शैतान जानता है अगर वचन चला गया इस व्यक्ति के अंदर तो ये गया मेरे चंगुल से. The devil knows if the word goes into your heart, you are out of his hands. Amen. मैं किसी के पास नहीं गया I did not go to any क्योंकि man, मुझे पता लग गया था प्रभु ने क्या बोला. भाई तेरे पास गोलियां नहीं है. because I knew what the Lord said. You don't have bullets. प्रभु ने मुझे बता दिया गोलियां क्या हैं. The Lord told me what the bullets are. मेरा वचन. My word. तो मैंने वचन पर मनन करना शुरू करा. I began meditating on his तब word. से Since मैं then, आपको बता रहा हूं, I'm telling you, ये बात है 2007 की. 2007 से मैं रात को घोषणा करता था भजन संहिता 91 की. this happened in 2007. Since 2007, I would declare Psalm 91 every night. सारे डिमोनिक अटैक्स खत्म हो गए. All the demonic attacks stopped in my life. आमेन. हालेलुया. बोलो मैं ना रात के भय से डरूंगा ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है. Say, I will not be afraid of the terror of the night, nor of the arrow that flies by the day. हालेलुया. नाउ कई लोग इसको केवल नेचुरल डर सोचते हैं, Many people think of this as a natural fear. मगर जब आप इसको एरामिक में जो हिब्रू लिखी गई, जो चैल्डियंस का जो वर्जन है, The Chaldean version of this verse, when it was written in Arabic, राइट, मैं आपको वो दिखाता हूँ. I want to show you. चैल्डी जो ट्रांसलेशन है वो इसको कैसे ट्रांसलेट करता है. The Chaldee translation ये translates it क्योंकि differently. ये एरामाइक से ली गई है, Because this was taken from तो Aramaic. ये उन लोगों ने लिखी है हिब्रूज ने जो इसकी ट्रेडिशनल वैल्यू को या जो ये लिखा गया था उसको जानते थे. So this is written by those people who knew the traditional value of what was being written. मैंने आपको क्या बताया था, टेरर ऑफ द नाइट नेचुरल डर नहीं है, डिमोनिक डर है. I told you the terror of the night is not natural fear, it is a demonic fear. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चैल्डी वर्जन में क्या लिखा है. Thou shalt not fear the demons that walk by night. तू उन दुष्ट आत्माओं से नहीं डरेगा जो रात को चलती हैं. Right? It's not a natural fear, it's a demonic fear. There are demons sent at night. ये स्वाभाविक डर नहीं है, ये शैतानी डर है. ऐसे शैतानी आत्माएं हैं जो मैं रात को आपको भेजी जाती इतने हैं. लोगों के बारे में बता सकता हूं जो मर गए, उनके सपने में आया मुझे कैंसर हो गया, उनके सपने में आया मेरा एक्सीडेंट हो गया. और क्योंकि वे लोग मसीह में नहीं थे तो उनके पास कोई अधिकार नहीं था. जैसे ही वो सपना आया वैसा ही उनके साथ हुआ. मगर अगर मसीह हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कोई सपना आया आपके पास पूरा अधिकार है उसको खंडित करने का यीशु के नाम में. There are so many people who died because when they were sleeping they got a dream that they had cancer or they had an accident, but they were not believers, so they died the way they saw in the dream. But if you are a believer and if you see a dream like that, you have full authority to destroy that dream and not let it happen to you. दुख की बात यह है कि बहुत से मसीह जो हैं वो आत्मिक जहां कैसे कार्य करता है बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल उनको नहीं पता. There are many believers who are completely ignorant of how the spirit world works. They do not have any idea.
आमीन। मगर आज हम सीख रहे हैं। But today we are learning. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. और हम सबको सीखना है, अपनी आखिरी सांस तक सीखना है। And we all need to learn till our very last breath. कोई भी ये नहीं कह सकता मैं अब भाई मुझे बहुत आ गया, अब नहीं चाहिए। No one can say, I have known enough, now I don't need any more. हाँ, आपने सुना है कई लोग कहते हैं हाँ मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत, मैंने बहुत। बाइबल कहती है जो कहता है मुझे बहुत आता है उसको कुछ नहीं आता। There are some people who say, I know everything. The Bible says, he who says, I know everything knows nothing. ये मूर्ख लोगों की निशानी है, This जो is- सीखना नहीं चाहते। This is a mark of fools. They do not want to learn. हाँ, तभी तो मूर्ख जो है वो मूर्ख रहता है क्योंकि सीखना नहीं चाहता। That's why the fool stays foolish मगर अगर because he doesn't want मूर्ख to learn. बुद्धि की को चाहे तो मूर्ख नहीं रहेगा ना फिर। But if the fool loves wisdom, he will not stay foolish anymore. आमीन, Amen. हालेलुया। तो हम सबको सीखना है। We all have to learn. मैं आपको कैसे बताऊं कुछ चीजें। एक बार प्रभु ने मुझे सिखाया कैसे दुष्ट आत्माएं, बीमारियां लोगों के सपनों के द्वारा उनके अंदर डाल के जाती है। The Lord taught me how demons put sicknesses into people's lives through their dreams. जानते हैं आप? Do you know how? जाते हैं वो कब्रिस्तान में बैठते हैं, एक व्यक्ति का नाम है, उसके फोटो है परिवार की, वहां से करना शुरू करते हैं। दुष्ट आपको समझना पड़ेगा, ड्रीम्स जो हैं वो लैंग्वेज है स्पिरिचुअल बीइंग्स की आपके साथ बात करने की। तो जैसे परमेश्वर एक आत्मा है, दुष्ट आत्माएं भी एक आत्मा है, वो आत्मिक बीइंग्स हैं। You have to understand that dreams are a language of the spirit world to communicate with you. Just as God is a spirit, demonic spirits are also spirits and they use dreams to talk to you. सो कई लोग केवल क्योंकि अगर आपको एक सपना आया इसका मतलब ये नहीं वो परमेश्वर की तरफ से है। Just because you saw a dream, it does not mean that it was from God. जैसे परमेश्वर एक आत्मा है और वो आपको सपने से एक मैसेज दे सकता है, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी एक गलत मैसेज आपको एक गलत सपने के साथ दे सकती हैं। Just as God is a spirit and he can speak to you through dreams, demonic spirits can also use your dream to give you a wrong message. आमीन। हमारे घर में हमने एक नियम लगा रखा है, मैंने और मेरी वाइफ ने। There is a rule in our family, me and my wife, we follow it. अगर वो सुबह उठती है कहती है मेरे को एक ड्रीम आया, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कैसा था, अच्छा था, खराब था? She खराब था मुझे मत बताना। She wakes up in the morning and says, I saw a dream. I asked the first question, was it a good dream or a bad dream? If it was bad dream, don't tell me. आमीन। मैं कहता हूँ अधिकार लो, ट्रैश कैन के अंदर डालो। I tell her, take authority, put it in the सुनो trash इस can. बात को, किसी दुष्ट आत्मा के पास ये अधिकार नहीं है कि बिना आपके एग्रीमेंट के आपके साथ कुछ कर सके। Hear this. No demonic spirit has the power to do anything wrong with you without your agreement, without your authority. तो क्या करता है, आपको एक गलत या गंदा ड्रीम देता है और वो दुष्ट आत्मा वेट करती है कि अगर ये बेवकूफ होगा तो ले लेगा ड्रीम को और खुद मुंह से बोलेगा मेरे साथ ये होने वाला है, और जब अपने मुंह से बोल देगा मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाएगा तो मैं इसका लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। So what the demonic spirit does is it gives you a wrong or a filthy dream and then waits. If this man is a fool, he will speak that evil dream and come in agreement with me, and then he will go through that dream. लोग मर गए सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसीज से, क्योंकि शैतान ने उनको एक गलत ड्रीम दिया, इन्होंने मान लिया परमेश्वर की ओर से, एंड दे बिगेन टू प्रोफेसाई डेथ टू देयर ओन लाइफ। बहुत से मसीह लोग मर गए अपने ऊपर गलत भविष्यवाणियां कर करके, क्योंकि शैतान ने उनको गलत ड्रीम दिया और वो अपने ऊपर बोलते रहे और खुद को मार दिया। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता। मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज एक कुंजी बता रहा There हूं are जयवंत जीने की। There are many people who do not know this, so I'm giving you a very important key to live a victorious life. शैतान कई बार ड्रीम से आपका बिलीफ सिस्टम मेसअप करने की कोशिश करता है। Many times the devil tries to use your dreams to destroy your belief system. प्रभु यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत बताया, एक व्यक्ति था जिसने एक अच्छा बीज अच्छी भूमि पे बोया, जब वो सो गया तो उसका दुश्मन आया और उसने क्या किया, झाड़ियां बो दी। जब वो व्यक्ति सो रहा था, झाड़ियां बोई जाती हैं
जब आप सोते हो कई बारी, Jesus told the story and he said, a man went and sowed seed in his field, and at night the enemy came and sowed tares in that field. So when you are sleeping, there are tares that are sown into people's lives. सो ध्यान से सुनो, अगर कोई ड्रीम आया जिसमें आपने अपनी मृत्यु देखी, अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हुए देखी, सुबह उठो, अधिकार लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलो, शैतान मैं पैरों तले रौंदता हूं इस ड्रीम को, और मैं ये घोषणा करता हूं कि ये ड्रीम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर पूरा नहीं होगा, क्योंकि लिखा है, शैतान मेरा परमेश्वर कहता है, मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। If you see a filthy, a wrong dream, when you wake up in the morning, tell the devil, this wicked dream will not happen to me or my family. It is written that my God will satisfy me with a long life and show me his salvation. If you see the death of any family member, any loved one or yourself, do not accept that dream in the morning. Amen. Hallelujah. हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें सीखना है आत्मिक जहां कैसे कार्य करता है कि शैतान हमें बेवकूफ ना बना सके। We have to grow in the spirit so that we learn how the spirit world works, so that the devil cannot fool you. Amen. Amen. कितने सारे ऐसे मसीह हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि ड्रीम देखा, उसको परखा नहीं कि परमेश्वर की आत्मा से है या नहीं है। So many believers destroyed their life just because they saw a dream, but they did not test the dream whether it was from God or not. मुझे एक व्यक्ति मिला शादीशुदा, कह रहा मुझे ड्रीम में परमेश्वर, शादी हो रही है, कह रहा प्रभु ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक और औरत है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, मैं उससे शादी करूंगा, सेवा करूंगा। मैंने कहा तू बेवकूफ है, बेवकूफ। A man came to me who was a married man and he said, God has given me a dream that I should marry another woman with whom I will serve God. I said, you are a fool. बेवकूफ क्यों है? Why is he a fool? क्योंकि तुझे नहीं पता ड्रीम को कैसे इंटरप्रेट करना है। Because he does not know how to interpret the dream. शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। सो जो ड्रीम देखते हो उसमें चेक करो, क्या उसमें चोरी हो रही है, नाश हो रहा है, घात हो रहा है, किसकी तरफ से? अगर शैतान की तरफ से, वो कहता है ये लो आपके लिए गिफ्ट, कहना मुझे चाहिए नहीं, चल भागे यहां से। जब लोगे ही नहीं, वो दे रहा है मगर आप लो ही मत। The devil comes to steal, to kill and to destroy. When you see a dream, whether is it destroying or is it building, and if it's destroying, when the devil is giving you a gift, don't take it. When you will not take it, it will not happen to you. इस बात को समझो, कोई भी आत्मिक बीइंग, कोई भी आत्मिक प्राणी या परमेश्वर, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं आपकी फ्री विल को वॉयलेट नहीं कर सकती। परमेश्वर ने ऐसा सिद्धांत बनाया। परमेश्वर भी अपना जो सैल्वेशन है, उद्धार है, जब तक आप नहीं एग्री करोगे, परमेश्वर जबरदस्ती आपको उद्धार नहीं दे सकता। God has made this principle, this protocol, that no spirit being can override your free will. God cannot override your free will. Angels cannot. Demonic spirits cannot. अगर परमेश्वर उद्धार जबरदस्ती नहीं दे सकता आपके एग्रीमेंट के बिना, तो शैतान भी बीमारी, श्राप, ये सारी चीजें नहीं दे सकता आपको आपके एग्रीमेंट के बिना। When God cannot give you salvation without your free will, without your agreement, then the devil cannot give you sickness or curses or any evil thing without your agreement. Amen. So कभी भी अगर गलत सपना आए, if you ever see a bad dream, आपके पास पूरा अधिकार है अपने पिता की तरफ से उसको खंडित करने का, पूरी रीति से। You have full authority from your father to destroy that dream. और केवल ड्रीम ही नहीं, not just the dream, अगर कोई गलत भविष्यवाणी भी आप करे, इस घर में ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की जगह नहीं है। even if someone does a false prophecy for you, there is no space in this house अभी यहाँ पे for मैं false आपको बता रहा prophets. हूँ, कुछ हफ्ते पहले एक औरत है, वो किसी को बोल रही थी मुझे प्रभु ने दिखाया 3 साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। हमने उस औरत को कहा निकल जाओ यहाँ से बाहर। यहाँ पे शैतान का मुंह नहीं चलेगा, यहाँ पे परमेश्वर की भविष्यवाणी होगी। मृत्यु की, श्राप की भविष्यवाणियां इस घर में नहीं होगी, यीशु के नाम में। There was a woman here who was prophesying over someone and saying you will die in 3 years.
That woman, we told her to leave the church and get out, because this house, the mouth of the devil will not be opened in this church. This is the house of God to build his people. Amen. Hallelujah. प्रभु रेवलेशन में एक पास्टर को डांटता है कि तू वो जो झूठी भविष्यद्वक्ता जेजबेल है उसको तू अलाउ करता है कि वो कलीसिया में गलत भविष्यवाणियां करे. God rebukes a pastor in the book of Revelation saying, you allow a false prophetess Jezebel to speak wrong prophecies in the church. इस घर में ऐसी जेजबेल की कोई जगह नहीं है यीशु के नाम में. There is no place for such Jezebels in this house. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, नो टॉलरेंस. अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी करता है कि तुम मर जाएगा या जगह, वो आउट कर दिया जाएगा इस घर से 1 सेकंड में. There will be no tolerance if anyone does these false prophecies. They will be out of this house in a second. Amen. Hallelujah. ये घर परमेश्वर ने जिंदगियों को बनाने के लिए रखा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं रखा. God has set this house to build his people, not to destroy his people. Amen. और ये सारे वो हैं, and all these false prophets are those जो कि हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, हमारी बहुत बड़ी. अरे भैया इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है तो लोग भी देगा ना प्रभु तुम्हें. who keep क्यों saying, दूसरे कलीसिया में जाके जबरदस्ती कर रहे हो जब मिनिस्ट्री नहीं है तो. who keep saying we have a big ministry, but they have no people. If God has given you a big ministry, he'll give you big people also. Amen. परमेश्वर ने चरवाहे के हाथ में रॉड भी दे रखी है. God has given a rod in the hands of the भेड़ shepherd की रक्षा करने के लिए. to protect the sheep. Amen. Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूं, I am fed up of these fake prophecies. मैं थक चुका हूं इन झूठी भविष्यवाणियों से. और बेचारा अगर कोई व्यक्ति सीधा है ना और उसने खा ली ये प्रोफेसी तो बेचारा नाश हो जाएगा. And if there is someone simple and eats that prophecy, they will be destroyed. मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूं क्योंकि ये जरूरी है कलीसिया को समझना इस बात को. I'll tell you again because it's important for the church to know. कोई भी आपके पास आए ना If anyone ऐसी comes to प्रोफेसी you, करने, आपको चेक करना चाहिए क्या ये कलीसिया के अगुओं ने इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया है. इस बात को समझो. कोई भी आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी करे, मत निकल जाओ उसको. if anyone comes to you and prophesies, don't trust them, don't take the prophecies just like that. Test, have the eldership of this church appointed them or not. परखो, बाइबल कहती है परखो भविष्यवाणियों को. Bible says test every prophecy. Because the prophecies are to edify, to exhort and comfort. क्योंकि भविष्यवाणी का काम है बल देना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, मजबूत Not to करना, destroy. नाश करना नहीं है. एक हमारे दोस्त हैं जो एक पास्टर है कलीसिया में. There's a उनकी friend. कलीसिया में ऐसे ही एक व्यक्ति आया और एक 18 साल के लड़के को बोला, मैं देख रहा हूं मृत्यु की आत्मा तेरे ऊपर है और अगर तूने 40 दिन उपवास नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी. There's a pastor friend of ours. In his church there was a 18-year-old boy, and a false prophet came there and he said, I see the spirit of death over you. If you do not fast for 14 days, you will die. वो बच्चा डर गया. 18 साल का बच्चा था. That 18-year-old child, he डर के was जंगल में भाग afraid. गया. He was afraid. He ran into the jungle. उसके घर वाले खोज रहे हैं, उसको मिला नहीं. His family was looking for him, could not कुछ find दिनों him. बाद उसकी लाश जंगल में मिली. After some days they found कौन his dead जिम्मेदार body. है? वो बंदा तो ये झूठ बकवास उल्टी करके चला गया. Who is responsible? That man spewed whatever he had to and he went away. मैं आपको बता रहा हूं आज I'm telling you today. बाइबल कहती है अपने आत्मिक अगुओं के अधीन रहो क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हैं. Bible says submit to your spiritual leaders because they protect your soul. Amen. Bible says a hireling will come, he doesn't care for souls. जो नौकरी पे आएगा उसको परवाह नहीं होगी प्राणों की. ये 10 जगह जाएंगे, ऐसी बकवास प्रोफेसियां करके निकल जाएंगे और कई लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे. Devil also sends his agents. They will go to 10 places, 10 churches and spew wrong prophecies and destroy lives and go away. शैतान ने भी अपने एजेंट भेज रखे हैं चर्च में. नहीं, आपको इतना भोला नहीं रहना है. Do not stay so अगर simple. कोई ऐसी गलत प्रोफेसी करता है, immediately run to your elders, tell your pastors कि ऐसा वचन मेरे जीवन में बोला गया था, हम आपके साथ एग्री करके पांव के तले रौंद देंगे ऐसे गलत शब्दों को. If anyone gives a wrong prophecy to you, come to your pastors, your leaders, and we will destroy that prophecy with you, agreeing against that prophecy. Amen. मैंने आपको क्या बोला था? इस घर में आपको समय से पहले जाने नहीं देंगे. I told you, in this house, we will not let you go before your time.
आमेन। बहुत कुछ करना है कलीसिया, There is so much we have to do, church. बहुत कुछ करना है। There's too much to do. पिता कहता है विद लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू। The Father says, मैं तुझे दीर्घ आयु से संतुष्ट करूंगा, तृप्त करूंगा। Amen. Hallelujah. So let's come here. So it says, thou shalt not fear the demons that walk by night. तू उन दुष्ट आत्माओं से नहीं घबराएगा जो रात को चलते फिरते हैं। Amen. So there are demons that walk by night. ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो रात को चलती फिरती हैं। There are demons that influence dreams, give dreams to people. ऐसी दुष्ट आत्माएं जो प्रभावित करती हैं सपनों को या सपने देती हैं लोगों को। Nor the arrow of the angel of death which is shot in daytime. ना ही मृत्यु के दूत के तीरों से जो दिन में चलाए जाते हैं। Now, this translation was taken from Aramaic. ये एरामिक से हुआ है अनुवाद। और जो पैशन ट्रांसलेशन है वो भी अरामिक से लिया गया है। पैशन ट्रांसलेशन भी एरामिक से लिया है। उसमें देखिए क्या लिखा है। Let's see what it says. You will never worry about an attack of demonic forces at night. तू कभी भी शैतानी ताकतों के हमले से नहीं घबराएगा रात को। You nor have to fear a spirit of darkness coming against you. ना ही अंधकार की आत्मा तेरे विरुद्ध आते तो उससे घबराने की जरूरत पड़ेगी। Amen. Hallelujah. So I want to tell you a story so that you understand. एक कहानी बताना चाहता हूं ताकि आप समझो। I'm telling you, जब आप इस बात को समझ जाओगे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों को दिया है। When you will understand how great an authority God has given to His sons and daughters. क्यों आज लोग इतने गलिबल हैं Why कि are- कोई भी गलत भविष्यवाणी को खा लेते हैं सीधे? Why are people so gullible today that they eat any wrong prophecy? क्योंकि वचन में सशक्त नहीं है। Because they are not strong in the word. कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, Anyone comes, says anything, डर जाएंगे। they will be afraid. आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। You should know who you are. Amen. तो मैं आपको आज एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी बताने वाला हूँ। I'll tell you a very powerful testimony today. जब मैं अफ्रीका में था। When I was in Africa, तैयार हैं आप? are you ready? हाँ। सो अफ्रीका में हम लोग कीनिया गए युगांडा के बाद, We went to Kenya outside Uganda in और Africa. वहां पे ब्लैक डॉट है, व्हाइट स्क्वायर के अंदर एक ब्लैक डॉट है। And in Africa, in many places, we saw a small board by the roadsides, a white board with a black dot in the center. हमने वहाँ पास्टर से पूछा ये क्या है, तो इन्होंने कहा यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये हाईली डिमोनिक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। We asked the pastor, what is this area? They said, this means this is a demonic area where there are many accidents. और ये एक बहुत ही ये अट्रैक्शन था क्योंकि धूप में पानी गिरता रहता था इससे, और कई लोगों को आवाज आती थी रोने की, इसीलिए इसका नाम है क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा। This was a tourist attraction because there would be water flowing out of this rock in the middle of hot heated sun, and then people would come and see this place. और ये कोई कहानी नहीं है, And मैं this is- आपको कोई फेक कहानी नहीं बता रहा हूँ, This is- डॉक्यूमेंटेड है। अभी आपको न्यूज भी दिखाऊंगा। This is not a fake story. I'm showing you a documented news. जितने लोग वहां जाते थे, अगर किसी को रोने की आवाज आई इस पत्थर की तो उसकी मृत्यु हो जाती थी कुछ हफ्तों के अंदर। When people would go there, many people would hear someone crying, the sound of someone crying, and many of those people, if they heard them cry, they would die in some days. इसका नाम ही है क्राइंग रॉक, क्राइंग स्टोन, क्राइंग रॉक। इसको रोने वाला पत्थर कहा जाता है काका में। सो 2013 में मैं अफ्रीका गया और टीम के साथ, टीम ने प्रार्थना करी इस जगह पे। 2013, I went to Africa with the team. हमने We prayed. इस स्पॉट पे प्रार्थना करी गई। We were at that हमने spot. प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार लिया We took authority in the name of Lord Jesus. और हमने कहा आज के बाद ये रॉक जो है ये रोना बंद होगा इसका यीशु के नाम में। And we said, after today, this rock will stop crying in Jesus' ये name. रॉक रोएगी नहीं अब, We said, this rock will not cry और anymore. कोई मृत्यु नहीं होगी अब इस जगह में। And no death will take place in this place. 2013 में कह के हम आ गए। We said it in 2013, we came back. अब क्या हुआ? What happened then? अब आपको 2020 का न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ। I'm showing you a न्यूज 2020 में जो आया है। news article of 2020. Can you put the news article? Hallelujah. Kakamega crying stone no longer rocks after he stopped shedding tears. काकामेगा का जो पत्थर था उसने रोना बंद कर दिया है। न्यूज में आया है
पानी बहना बंद हो गया, वहां किसी का मरना बंद हो चुका है। Now no more water flows from that rock. No one dies in that place anymore. हालेलुया। ये 2020 में और 19 में न्यूज आने लगी बाहर कि 6 साल हो गए वो वहां से पानी, सब लोग परेशान है, भैया क्यों रोना बंद कर दिया, किसी को नहीं पता। 2019, this news came out. The rock has stopped crying. No one knows why. 2019 से न्यूज आने लगी, हम कब थे? 2013, 6 साल हो गए। उस प्रार्थना के बाद पानी बहना बंद हो गया, वो रॉक ने रोना बंद कर दिया है। 2019, the news came out. It's been 6 years. There's no more water coming out. No more tears from that rock. No more crying. और अगर आप घर जाके इसके बारे में रिसर्च करते हैं, सब लोग कह रहे क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं रो रहा, क्यों नहीं रो रहा ये पत्थर, हमें पता है क्यों नहीं रो रहा ये पत्थर। You go home and study about it. People are saying, why is it not crying anymore? Is it climate change? Is it what? We know what it is. ये पत्थर क्यों नहीं रो रहा है? The rock क्योंकि is not परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा इस सृष्टि को छुड़ाया जाएगा। The rock is not crying because the sons of God will deliver the creation. Amen. Hallelujah. So जितनी जगह लोग बोलते हैं haunted है, वो तब तक haunted है जब तक sons of God has not gone to that place. All the place they call haunted is because परमेश्वर के पुत्र वहां पर अभी नहीं गए हैं। और आपको पता है अब क्या हुआ? You know what क्योंकि ये happened? टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। This was a tourist destination. आप पढ़ सकते हैं, यूरोप से भी लोग आते थे यहाँ पे, People used to come here from क्योंकि Europe. बिल्कुल धूप होगी और पानी, आप दोबारा लगाओ उसको, आप देखो पानी इतना बहता था, आप मार्क देख सकते हो पानी का, देख रहे हो? In the middle of sun, there would be water flowing out. पानी बहता रहता था, कहां से पानी आ रहा है किसी को नहीं पता। Where पानी, was the water coming from? No one knew. तो तब बोलते थे ये क्राइंग रॉक है, रो रहा है पत्थर। People said it was a crying rock. It was crying. अब 6 साल हो गए, रोया नहीं है पत्थर, 6 years, the rock has not cried तो anymore. लोगों ने आना बंद कर दिया। तो गांव वाले कह रहे अरे इसको डायनामाइट लगा के उड़ा दो इसको। So people have stopped coming here for tourist destination. Now the villagers are saying, let's destroy this rock. Get away with it. न्यूज में आप पढ़ सकते हो। You can read it in the news. आमेन। मैं तभी आपको कह रहा हूं, किससे कहा, जो हम परमेश्वर के पुत्र, हमें जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, दुनिया उसको देखेगी यीशु के नाम में। We, the children of God, the sons of God, the authority God has given to us, the world will see it. आमेन, हालेलुया। जहां आप जाओगे वहां रोना चिल्लाना नहीं, वहां हर्ष उत्सव होगा, वहां सेलिब्रेशन होगा यीशु के नाम में। Wherever you will go, there will be no crying and weeping. There will be celebration and dancing and rejoicing in Jesus' name. आमेन। तभी तो बाइबल कहती है सृष्टि करा रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। That's what the Bible says. The creation is groaning for the sons of God to manifest. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत नहीं? Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत? Hallelujah. Okay, 6वीं आयत देखते हैं। Let's look at the 6th verse. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. वैसे ही ना उस महामारी से जो अंधकार में छिपी रहती है, अथवा उस विनाश से जो दिन दोपहरी में प्रहार करता है। अभी आप न्यूज में देखते रहोगे, लोग बोलेंगे एक नया वायरस आ गया, चाइना में ये हो गया, एक नई महामारी आ रही है, ये हो रही है। You will keep seeing in the news, new pandemic is coming, new viruses come out. आपके टीवी की वॉल्यूम कम और वचन की वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। Bring down your TV volumes and bring up your Bible volumes. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देख सकते हो हमारी तब अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस, पहली सर्विस, क्योंकि मैं आपको आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, तो मैं आज आपके साथ एक कन्फेशन भी करता हूं। Since it's anointing oil service, I want to share, make a confession. क्योंकि आपको पता है मैं पैशन रखता हूं वचन के लिए, I'm तो पहले passionate मैं for नहीं word. समझता था अनॉइंटिंग ऑयल इंपॉर्टेंस को। I am passionate for the word of God. So earlier I did not understand the मुझे importance लगता of था anointing ये oil. ऐसी सिंबल है, I used to think it's a symbol. हाँ ये क्या मसीह लोग कब तक ये तेल के पीछे भागेंगे। What are believers doing running after oil? मुझे लगता भाई वचन में बढ़ो। I would say grow in the word. अब Now. जिस दिन आखिरी संडे था, हमें नहीं पता वो आखिरी संडे कोविड का, We did not know, but it was the last Sunday before COVID और lockdown. रात को मुझे एक ड्रीम आया, At night I saw a dream. और मैंने परमेश्वर के एक दास हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, डॉक्टर डेविड ओएडेपो, अफ्रीका से। And there's a man of God I deeply honor, Bishop David Oyedepo from आज Africa. मैंने उन्हीं की तरह कपड़े भी पहने। I am wearing clothes like him today.
सो वो रेड टाई पहनते हैं व्हाइट सूट के साथ। He wears a red tie. मैं वैसे दूसरी टाई लेके आया था, मगर पास्टर सामंत का नहीं, रेड ही पहनो। Dad brought a green tie. I said, no, you should wear a red tie. तो उस ड्रीम में, वो मेरे ड्रीम में आया, उन्होंने तेल को मेरे सर पे उंडेला। He came in that dream and he poured oil on my head in that dream. और जब मैं सुबह उठा, I woke up in the morning. क्लियर कट मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आई और बोला, बेटे इस संडे को अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर। I clearly heard the Holy Spirit say, son, do an anointing oil service this Sunday. बड़ा मुश्किल था मेरे It लिए। was very difficult for me. क्यों? Why? क्योंकि मैं बोल रहा था क्या ये तेल, Because I would say, what is this oil? तो मैं सेकंड होली स्पिरिट के पास गया। I went to the second Holy Spirit. को पता है सेकंड होली स्पिरिट कौन है? You know who the second Holy Spirit is? दो, एक तो इंटरनल होली स्पिरिट है There is an internal Holy Spirit, जो अंदर रहती है, the one that lives inside of you. एक सेकंड होली स्पिरिट है जो बाहर रहती है। There is a second Holy Spirit that lives outside of you. आप उस पवित्र, उस होली स्पिरिट की जो अंदर है आवाज आप इग्नोर कर सकते हो, मगर जो बाहर है उसकी आवाज इग्नोर नहीं कर सकते। You can ignore the voice of the Holy Spirit inside, but you cannot ignore the voice of the Holy Spirit outside. मैं जोक कर रहा हूँ, I'm just होली joking. स्पिरिट एक ही है। मेरा कहने का मतलब, क्योंकि होली स्पिरिट को भी हेल्पर कहा है और बीवी को भी हेल्पर कहा है। Holy Spirit is also called a helper and a wife is also called a helper. सो मैं पास्टर मोनिका के पास गया, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे ड्रीम दिया कि इस संडे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करो। I went to Pastor Monica and I said, the Lord has given me a dream and said, do anointing oil service this Sunday. आप सोचो उन्होंने क्या कहा होगा? Imagine what she would have said. कह रहे अच्छा, She said, yeah, तुम really? तो वैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल के अगेंस्ट बोलते रहते हो। You always speak against anointing oil. मैंने कहा भाई मैंने अगेंस्ट नहीं बोला अनॉइंटिंग ऑयल I के, said, I haven't spoken against it. मैंने कहा मैं ये बोलता हूँ कि वचन में बढ़ो। I say, grow in the word. मगर मैंने उनको बोला अगर प्रभु ने बोला है, But I said, if the Lord has said it, वो बॉस है, मैं नौकर हूँ, He is the boss, I am the servant. उसकी मर्जी पूरी होगी इस घर पे। His will shall be done in this house. आमेन। सो हमने वो संडे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस रखी। That Sunday, we kept anointing oil service. और वो आखिरी उस संडे के बाद And there was the last Sunday. After that Sunday, बंद हो गया चर्च। lockdown hit. जितने लोग उस संडे को आए थे, जितने लोग, क्या कलीसिया में, हमारे कलीसिया में एक भी व्यक्ति की कोविड से डेथ नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति की। Every person that was in the church, not just that, not even one person in our church died in COVID. आमेन। Amen. सो आज भी अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है। Today we have our anointing oil service. मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you. आज जब ये अनॉइंटिंग ऑयल आपके शरीर को टच करेगा, आप मार्क किए जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे जितनी भी महामारी आए, चाहे जितने भी रोग आए, चाहे जितने भी नाश करने वाली चीजें आए, वो आपको और आपके परिवार को छू भी नहीं पाएगा। Amen. Today, as your body is touched by that anointing oil, you're being marked. No matter how many viruses, pandemics come, it will not even touch you or your family in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. अभी तो शुरू किया है। I have just started. Amen. तैयार हो आप? Are you ready? मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आपको प्रभु यहां लेकर आया है, If God has brought you here, तो मतलब आप झेल सकते हो 4 घंटे की सर्विस, इसीलिए यहां लाया है। it means you can bear a 4-hour service. That's why the Lord has उसको brought पता you है here. किसकी कैपेसिटी कितनी है। He knows who has what जो capacity. ज्यादा भूखे हैं वचन के लिए, परमेश्वर उनको यहां ले आता है। Those who are more hungry for the word, the Lord brings them here. Amen. 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 क्योंकि ये घर योद्धाओं को ट्रेन करने का घर है। Because this house is the house of training His champions. Amen. Hallelujah. प्रभु ने एक दिन मुझे कहा था, इस घर में 2 आवाजें कभी बंद नहीं होंगी। One day the Lord spoke to me and said, 2 sounds will never cease from this house. और ये बहुत पहले की बात है। And this is way back. उसने कहा था नए बच्चे जब जन्म लेते हैं उनकी आवाज, He said, when the newborn babies are born, that sound, और जो सोल्जर्स मार्च करते हैं उनकी आवाज, ये and 2 when the आवाजें soldiers march, इस घर these में 2 हमेशा sounds होंगी। will always prevail in this house. हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, सो ना उस महामारी से जो अंधकार में छिपी रहती है, सो 8th कम। प्रभु 8वीं वाली का क्या होगा?
Why does the Bible say the word 7? बाइबल 7 क्यों कह रही है? 7 is the number of completeness or fullness. God is saying, no matter what kind of calamity or destruction tries to come against you, nothing shall be able to touch you. 7 जो अंक है वो पूरी को दर्शाता है, सारी को दर्शाता है। परमेश्वर कह रहा है सारी की सारी विपत्तियों में कोई भी तुझको छू नहीं पाएगी। सातों विपत्तियों में तुझे कोई हानि ना होगी। Even in the 7 there will be no evil that will touch you. In famine he shall redeem you from death. वो अकाल में तुझे मृत्यु से बचाएगा। And in war from the power of the sword. और युद्ध में तेरी मृत्यु से रक्षा करेगा। Amen. चाहे अकाल आए, Whether it's चाहे famine महामारी आए, और pandemic चाहे एक्सीडेंट हो, और accidents चाहे लड़ाइयां हो, और wars, चाहे भूकंप आए, earthquakes, हाँ, चाहे जादू टोना हो, witchcraft, कुछ भी चीज आपको और आपके परिवार को छू नहीं पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। nothing shall be able to touch you and your family in the name of King Jesus. बहुत ही ये आमेन में कोई जान नहीं थी इसमें। There was no conviction कितने in your लोग amen. विश्वास करते हैं जो मैं कह रहा हूं? How many of you believe what I'm saying? आमेन, हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Okay. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमेन। हर एक प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखी है तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप विश्वास ना मिलाओ उसमें। Every promise of the Bible does not get fulfilled unless you mix faith in it. यानी जब आप रोज सुबह उठे हो आप बोल सकते हो धन्यवाद पिता, कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। Every morning when you wake up, you can say, "Thank you, Father. No evil will befall my dwelling place." आपको विश्वास मिलाना पड़ेगा उसमें। You will have to mix faith in it. ओके, सो फैमिन में कुछ नहीं होगा, अकाल में कुछ नहीं होगा। हाँ, No harm will come to you in famines. लोग कह रहे थे जब कोविड हुआ, कोविड हो गया, नौकरियां जा रही हैं, हमारी कलीसिया में भर भर के प्रमोशन हो रहे हैं, लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, People during the COVID घर time, खरीद रहे हैं लोग, प्रमोशन हो रहे हैं। During दुनिया के लिए अकाल होगा, आपके लिए वो बेस्ट टाइम होगा। in COVID times, people were saying, "Oh, people are losing jobs." But in the church, people were getting promoted. They were buying houses. When it's a famine for the world outside, the church of the Lord Jesus Christ will flourish in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 21 से 22 में देखते हैं। You shall be hidden from the scourge of the tongue. तू जीभ के श्रापों से बचा रहेगा। जो लोग श्राप देते हैं आपको, आप जानते हैं आत्मिक जहां में जो जीभ से श्राप निकलते हैं उनको दुष्ट आत्माएं लेके लड़ाई लड़ती हैं। In the spirit world, when people release curses against you, the demonic spirits take those words and wage war against you. And you shall not be afraid of destruction when it comes. और तू विनाश से ना घबराएगा जब वो आएगा तो। बोलो, I shall not be afraid of destruction when it comes. बोलो, मैं विनाश से नहीं घबराऊंगा जब वो आएगा तो। अब तो इतना मजेदार है ना जो परमेश्वर का वचन कहता है। चलो ठीक है, आप नहीं घबराओगे तो अलग बात है। It's okay if you're not afraid. That's one thing. The Bible says you're gonna laugh at destruction and famine. Now the Bible says कि तुम हंसोगे जब विपत्ति आएगी तो। जब विनाश आ रहा है परमेश्वर के लोग हंसेंगे, बाइबल कहती है। When destruction is coming, the Bible says the people of God will laugh at it. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति क्यों हो। हंसोगे आप? Why will you laugh? क्योंकि आपको पता है मैं अपने पिता के पंखों की आड़ में हूँ। Because you know I am hidden under the wings of my Father. What is permitted to touch people outside is not permitted to touch you and your family in the name of Jesus. जिस बात को अनुमति है कि वो लोगों को हाथ लगा सके, उसको अनुमति नहीं है कि आप या आपके परिवार को छू भी सके यीशु के नाम में। Amen. Come on, declare it. Say, I am a touch me not entity. मेरे साथ घोषणा करो, मुझे कोई भी चीज हाथ भी नहीं लगा सकती है। Hallelujah. Not because of anything that we
have done, not because of who we are, but because of whose we are. किसी भी ऐसी बात से नहीं कि हमने क्या किया है या हम कौन हैं, लेकिन इस बात के कारण कि हम किसके हैं. Amen. Amen. क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पंखों की आड़ में हूं. Because I am hidden under the wings of the Almighty God. Can you put that picture again of that bird? I mean, like it's just so close to my heart. आप उस पक्षी की तस्वीर दोबारा लगा हाँ, सकते हैं. मेरे दिल लास्ट के बड़ी संडे करीब कितने है. लोग आए थे? How many people were there हाँ, last Sunday? याद है आपको? मैंने आपको क्या दिखाया था? What did I show कि you? जो विंग्स वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो तस्वीर थी जब एक चिड़िया अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेती है. और वो पिक्चर वो देखिए, वो कैसे सो जब बाहर विनाश नाश कर रहा है, आप पंखों के अंदर हंस रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैं अपने पिता के पंखों की आड़ में हूं. So when destruction is destroying outside, you are laughing inside because you know you are hidden under the wings of your Father. Amen. मुझे बताओ, उसके पंखों को कौन सा जादू टोना भेज सकता है? Tell me what witchcraft can pierce through his wings? कौन सा बाण इन परों को भेद सकता है? What arrow can come through these wings? Hallelujah. Hallelujah. You will dwell in safety. Your family will dwell in safety in the name of Jesus. आप सुरक्षा में रहेंगे, आपका घराना, आपका परिवार सुरक्षा में रहेगा यीशु नासरी के नाम में. हालेलुया. एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक बहुत अमेजिंग एक उन्होंने गवाही बताई. There's a man of God who shared a very amazing testimony. और उन्होंने बताया कि स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में एक माँ थी, And he shared how और उसका छोटा बच्चा था, 6 साल का. in a small village in Scotland there was a mother who had a उसके small, पिता की मृत्यु हो गई थी, 6-year-old और boy. उसको डिप्थेरिया बीमारी हुई और वो आखिरी सांसें ले रहा था. The boy's dad had already died and this child was diagnosed with diphtheria. उस समय ये बात है 1930s की, And he was breathing his last back in 1930s. और वो माँ अपने बच्चे को ऐसे भरते हुए सिसक सिसक के आखिरी सांसें लेता, तो उसने अपने आप की पीठ उसकी तरफ कर दी कि मैं मरते हुए इसको ना देखूं. And as that child was breathing his last, the mom turned her back to him so that she would not see him die. ये असली की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ. I'm telling you a true और story. वो रो रही है, परमेश्वर को पुकार रही She है. was crying out, God, तब calling तक out to उसका God. भाई भागते हुए उसके पास आया In that time, her brother came running और उसने कहा, and said, इस बच्चे की डेथ नहीं होगी. विलियम, उसका नाम विलियम की डेथ नहीं he होगी. said, William will not die. मतलब विलियम की डेथ नहीं होगी. He said, William will not die. उसने कहा तेरे को कैसे पता, देखिए कैसे मरने She की said, how हालत. do you know? Look at him. उसने कहा नहीं, मैं भजन संहिता 91 में पढ़ रहा था, मैं साम 91 पढ़ रहा था, और आखिरी के वर्ष से परमेश्वर ने मुझसे बात कही और बोला जा और उस बच्चे को बोल दे, उसकी माँ को बोल दे, उसके बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, मैं दीर्घायु से उसके बच्चे को तृप्त करूंगा. He said, I was reading Psalm 91 and God spoke to me from the last verse, go and tell the child and his mother that this child will not die, I will satisfy him with a long life. और जैसा परमेश्वर ने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. वो परमेश्वर के दास बता रहे थे. And as God had spoken, that is how it happened, the man of God was telling. वो बच्चा मरा नहीं, The child did not die. मगर एक परमेश्वर का दास बना. He became a man of God. और वो कहते हैं, वो कहानी बताते बताते कहते हैं, वो परमेश्वर का दास मैं ही हूँ. And while telling that story, he would say, I am that man of God. और वो वन ऑफ द बहुत माइटी परमेश्वर के बंदे बने और 90 साल तक पूरी हेल्थ में जिए और परमेश्वर की सेवा करी. उसका वचन जो उसके मुख से निकल के जाता है, खाली हाथ वापस नहीं आता. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. He became 90 years old, lived a long life, because any word that comes out of God's mouth does not go empty. It fulfills the work it was sent for. Amen. गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है. The good news is that God is not a partial God. ये जो भजन संहिता 91 है,
ये केवल अमेरिका के लोगों के लिए, यूरोप के लोगों के लिए, अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी लिखा गया है। Psalm 91 is not just for Americans, Europeans or Africans, it is written for us as well. Amen. उसको अपना बना लो। Make it your own. वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, इसकी जगह बोलो, मैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूं। When it says he who dwells in the secret place of the Most High, say I dwell in the secret place of the Most High. Amen. इसीलिए जो रात को हम चलाते हैं आपके लिए भजन संहिता 91, अगर आप ध्यान से सुने, वो पर्सनलाइज्ड है। So the Psalm 91 we play at night for you, it is personalized for you. Amen. आप लोग, कई लोग इस बात को नहीं जानते। Many of you do not know. मैंने आपको बताया था, पंखों की आड़ परमेश्वर की प्रेजेंस है, बट पंखों की आड़ इज ऑल्सो वो अगुवे जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है। I had told you the wings represent the presence of God, but those wings are also the leaders, the elders that God puts in your life. Fathers are feathers, याद रखिएगा। जो पिता है वो पंख होते हैं। यूएस में बिकॉज ऑफ, मैंने कितने प्रॉफिट्स को भेजा, मैंने अपने लोगों को भेजा कि तुझे पंखों की तरह कवर कर लूं, मगर तूने उनको रिजेक्ट किया। सो कई बारी परमेश्वर तो पंखों के अंदर कवर करता ही है, मगर कई बारी परमेश्वर अपने दासों को आपके जीवन में भेजता है जो पंखों की तरह आपको कवर कर सकें। Jesus said to Jerusalem so many times, I sent my prophets, my people to you, and I tried to bring you under my wings. God will send his people in your life to bring you under his wings. मगर लोग आज मसीह लोगों को भरमा दिया, वो नहीं जानते इस बात को। But today many believers are deceived and they do not know this. और यीशु मसीह यरूशलेम में आके कहता है, क्योंकि तूने उन लोगों को तुच्छ जाना, तूने रिजेक्ट कर दिया, आखिरी में तूने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया, अब तुझे डिस्ट्रक्शन से कोई नहीं बचा सकता। Jesus said to Jerusalem, because you did not recognize the people I sent to you, now you have also rejected me. So there is nothing that can save you from destruction. क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, आत्मिक बात को, बोल्डली इस बात को कह सकता हूं, आप में से कितने लोग हो जो मरे नहीं क्योंकि इस घर में प्लांटेड हो, पता है? Because I know this, I can say this boldly. So many of you have not died because you are planted in this house. कलीसिया के अंदर प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। There is protection inside the church. Amen. आपको क्यों लगता है हर रोज हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना हो रही है यहाँ पे? इतनी इजीली मैंने क्या बोला, आपको जाने नहीं देंगे हम लोग। Why do you think we are praying for all the members every day? We told you we will not let you go easily. Amen. अगर जो यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं लोगों के, कैन यू शो सम, मैं आपको थोड़ी सी, कितने लोगों के साथ तो क्या क्या नहीं हुआ, मगर आप देखिए अगर वो पिक्चर, इफ यू कैन सी दीज पीपल, ईच वन ऑफ देम केम आउट स्क्रैचलेस। ये इतने सारे जिन लोगों के एक्सीडेंट हुए यहाँ पर, इनमें से हर कोई बिना खरोंच के बाहर वापस आया। Amen. And this is just a few. ये सिर्फ कुछ लोग हैं, Just a few. कुछ थोड़े से लोग हैं उनमें से। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है आपके जो अगुवे हैं वो आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं? Why does the Bible say that your leaders are protecting your soul? इस पृथ्वी में परमेश्वर ने अगुवों को रखा है आपके प्राणों की रक्षा के लिए। On the earth, God has kept your leaders to protect your soul. Amen. Hallelujah. Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं? That all these people are so fine and well and dancing. आपको पता भी नहीं है कितने लोगों के साथ, you know, और वहीं पे बाहर कई लोग हैं, इससे 10% minor accident हुआ and they have died. Yeah, many people who had a much minor accident and they died in that. Amen. Hallelujah. मेरी प्रभु से एक ही वो है ना प्रभु? I have one thing with the Lord. I said, Lord, जो यहाँ आएगा ना, जल्दी से मरना नहीं चाहिए। whoever comes here should not die. पूरी वॉक करके जाओगे, You will complete पूरी your walk. अपनी सेवा को पूरी करके जाओगे जो परमेश्वर ने रखी है इस पृथ्वी पे यीशु के नाम में। You will run your race and complete your race, whatever the Lord has kept for you in Jesus' name. Amen.
I declare sudden death will not touch you and your family in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं कि अकस्मात मृत्यु तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छू भी नहीं पाएगी यीशु के नाम में। With long life, your God will satisfy you and show you the fullness of His salvation. दीर्घ आयु से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें तृप्त करेगा और अपने उद्धार की परिपूर्णता दिखाएगा। Amen. Hallelujah. Praise God. Amen.